चलो भाई अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हिरोमी 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 क्वेश्चन नंबर 8 हिरोमी। देखते हैं क्या पूछा गया है। एग्जिबिट 3 वर्क टू बी कैरिड आउट एक्सट्रैक्ट from the email from manager dated on 1st of September 2025. I need you to prepare notes for internal use prior to the meeting with Hiromi. The notes should be set out in a manner which will make it easy for us to refer to them during our discussions and should address the following issues. Pehla A. Refund of income tax. Summarize the actions which our firm should take, including the matters which we should bring to Hiromi's attention in relation to the refund that she has received. हमको respond to the instructions in the email from your manager. हमें आज की डेट ठीक है, 1 सितंबर 25 है। इसलिए भी मुझे लगता है कि हमें वो टू फ्रॉम वाला ही मेथड फॉलो करना है, ठीक है ना। टू फ्रॉम सब्जेक्ट फाइल्स प्रिपेयर्ड बाय, तो हम जो कोई भी रहेंगे, यू आर एन ACCA स्टूडेंट वर्किंग फॉर फर्म ऑफ अकाउंट्स, तो ये हम मैनेजर टैक्स सीनियर वाले बोल देंगे। ये सब ठीक है ना। मैनेजर Exhibit 1. Hiromi's income and chargeable gains. Extract from the memorandum for your manager. First of recording matters. Uh, Discuss in the meeting with Hiromi. Hiromi recently became a client of our firm. Her sources of income and chargeable gains the tax rates are summarized below. Sources of income. Hiromi has been in a business as a sole trader since 2016. On 31st of December 2025, Hiromi will incorporate her business by selling all of its assets to a newly formed company called HKR Limited. The details of this transaction are set out in the schedule from Hiromi. Chargeable gains. Hiromi's only disposal in the tax year was of a rental property on 28th of April 2025. Hiromi sold this house for 2,65,000. She had inherited from her uncle, blah blah blah. ये सब चीजें बाद में काम आएंगी, हमें इनकम टैक्स रिफंड पे फोकस करना है। Hiromi received an unexpected refund of income tax from HMRC in respect of the tax year 21-22. Hiromi's tax adjusted trading profits for her final 3 periods of trading are set out below. फाइनल 3 पीरियड्स के अंदर लॉसेस दिए हुए हैं हमको, ठीक है। हिरोमी Hiromi elected to tax all her transition profits in the tax year 23-24. Hiromi's only other source of income in recent years is a house rented, ठीक है। तो ये सब ये देखो, Hiromi has received an unexpected refund, तो खाली अनएक्सपेक्टेड रिफंड के बारे में ही है। सबसे पहली बात तो वी शुड as soon as Hiromi tells us that she has received an unexpected refund from income tax from HMRC, from HM Revenue and Customs, in respect of the tax year 2021-22, we should evaluate the matter, ठीक है ना। तो कहाँ गया ये? A part, we should evaluate the matter as soon as possible and try to understand why this refund was received in the first place and whether the refund was fair and just। fair and must लिख दिया मैंने भाई, just है वो, fair and just। If we are not able to come to a conclusion as to why this refund was received, we should discuss the matter with our client, which is in this case is Hiromi,
regarding the fact that we should be regarding the fact that we should be disclosing this refund received to HMRC as HMRC as soon as possible and should make the tax payment regarding the same and should make the repayment लिख देता हूँ ना यार should make the repayment regarding the same. However, however, if the client refuses to disclose this information to the HMRC, then we must resign as their tax advisors and inform the HMRC that we no longer represent the client as their tax advisors if but we should not advisors but we should not give them the reason for our for our for our resignation. We can also contact the money laundering officers of our firm about about this matter. ये इतना मुझे लगता है ठीक है ना? फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कुछ कुछ लिख सकता हूँ कि payment was mistakenly as the payment might have been mistakenly credited to Hiromi, which didn't actually belong to her, and her hiding the fact of receiving receiving money might lead to further penalties if if she is caught. ये सब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? तो ये सब तो मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं पहले तो इतना तो सही होगा। ये तो बहुत बेसिक पार्ट है यार, मतलब दिस इज लाइक द थियोरी पार्ट ऑफ इट। फॉर है वो, फॉर द फाइल्स सब्जेक्ट वेरियस मैटर्स क्लाइंट हिरोमी प्रिपेयर्ड बाय डेट। तो मुझे लगता है मुझे इसका है ना एक प्रॉपर ऐसा फॉर्मेट बाय हार्ट कर लेना चाहिए ये वाला। We should assist Shirumi in identifying whether or not there was a valid reason for refund. If we are able to find a valid reason, we would have to conclude that refund was made as a result of we. If we would have to conclude, if we are unable to find a valid reason, then we would have to conclude that it was because of the error. हमने लिखा है mistakenly received by HMRC from the HMRC. उन्होंने लिखा है error on part of the HMRC. In these circumstances, we should inform Hiromi that the amount should be repaid and that failing to do so would be civil and or a criminal offense. ठीक है? HMRC would be informed of their error as soon as possible in order to minimize any interest and penalties which may otherwise become payable. In the unlikely event that Hiromi is unwilling to return the money, Hiromi's willingness to retain money which does not belong to them would require us to consider ceasing to act
as her tax advisors, we would then have to notify the HMRC or the tax authorities that we no longer act for her. Although we would not provide them any reason for our action, our firm's money reporting office, okay, money laundering, मैं तो पहले तो मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैंने लाउंडरिंग लिखी है, daring laundering officers. We could contact the money laundering report officers, money laundering reporting officers of our firms regarding to consider whether or not it is necessary to make the report under the money laundering. Okay, so we should contact our money laundering officers so as to ascertain whether it is required for us to report this under money laundering rules. ठीक है, तो ये बेसिकली इतना तो ठीक है, हमने काफी ठीक ठीक ठाक लिखा था ये वाला आंसर. आगे बढ़ते हैं. Chargeable gains. When carrying out this work in respect of Hiromi's chargeable gains, you should ignore any relief which may be available to her in respect of her trading loss. ठीक है? Calculate the capital gains tax payable by Hiromi as a result of sale of the rental property on 20th of February 2025. पहले मैं सिर्फ इतना करूंगा, मैं इससे आगे मैं जाऊंगा ही नहीं. इतना है 1st of September, sorry, 22nd of February 2025. ये है ना चार्जेबल गेन्स. ठीक है. Hiromi has been in the business नहीं हो जाने दो. Chargeable Hiromi's only disposal in the years was her rental property. On 20th of February 2025, Hiromi sold the house on 2,65,000 for 2,65,000 को मैंने sale proceeds of the house कितने का बेचा मैंने वो घर 2,65,000 का. She had inherited from her uncle on 1st of March 2013 when it had a market value of 2,21,500. ठीक है. मार्केट तो बेसिकली मैंने मतलब मार्केट वैल्यू पे लिया हुआ है 21,500 लेस. ये हो गए मेरे चार्जेबल गेन्स. Hiromi's uncle had purchased the house for 13,500 on 1st of September 2020. Sorry, 2006. Hiromi had never lived in the property. तो मतलब पीआरआर तो नहीं मिलेगा बिकॉज शी हैज नेवर लिव्ड इन द प्रॉपर्टी. अच्छा, इन्होंने नीचे कहीं पे वो इंडेक्सेशन वगैरह कुछ दिया है क्या? कहीं पे तो दिया होना चाहिए बिकॉज 2013 में उसको ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी, दे आर सेइंग. और फिर बहुत ही छोटा सम बन जाता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. और आई नो इसके आगे है चीजें बट इट्स जस्ट दैट मुझे इतने पे खत्म नहीं. एक मिनट, नीचे भी कुछ तो है. चार्ज हिरोमी ओनली डिस्पोजिंग रिसेंट इयर्स रेंटल प्रॉपर्टी 21 अंकल. अच्छा, ये सेम ही लाइन उन्होंने लिखी हुई है बस सेकेंड टाइम में. ओके ओके, सो दिस इज जस्ट बुलशिट बेसिकली. ये गलती से प्रिंट हो गया है. ओ ओके, दिस हैज बीन मिसप्रिंटेड. क्योंकि देखो ना, उन्होंने ऊपर ना सोर्सेज ऑफ इनकम की बात की है और उसके मतलब बिजनेस बिजनेस की बात की है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, और फिर चार्जेबल गेन्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे, तो वो गलती से प्रिंट हुआ है एक्चुअली. ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. क्या मुझे तो कैपिटल गेन्स टैक्स पेबल निकालना है ना. ठीक है, फिर लेस ए 3,000. ठीक है ना. तो आता है टैक्सेबल गेन्स. यहाँ पे ए के बाजू में मैं लिखूंगा ऑन द अजम्पशन on the information that this is the only disposal Hiromi has made in the tax year. मैं टैक्सेबल के आते हैं 40,500 की. अब मैं इसको सीजीटी क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को ईयर तो देखो मुझे पता है कि मैं 25 में भेजा है, मतलब मैं 24-25 का साल है. लेकिन क्या सीन है पता है क्या? 24-25 का साल है लेकिन तुम ये देखो कि तो मैंने बहुत सारे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स भी हैं, तो मेरा एनएसआई वगैरह थोड़ा सा यूज होगा, मेरा बैंड थोड़ा सा यूज होगा. वो सब सीन अभी होने वाला है. ठीक है ना. तो अभी वो पढ़ना पड़ेगा. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं. In respect of the proposed sale of Hiromi's business assets to HKR, explain whether, अच्छा, exhibit 1 and 2, okay.
explain explain whether or not each of the three conditions incorporation relief will be satisfied on the assumption that incorporation relief will be available and that all available reliefs will be claimed where necessary. Calculate the CGT which will be payable by Hiromi in respect of the sale of her business assets. Okay, तो ये business assets को तो बाद में ही आएगा. मुझे capital gains का अगर ये निकालना है तो सबसे पहले ना मैं क्या बोलता हूँ. ये तो चलो हो गया. अभी ये पढ़ते हैं. Hiromi's tax adjusted trading profit for her final three periods of her trading are set out below. 6 months ending 31st December 25 लॉस. ये भी लॉस 4000 का और ये भी जून 24 का प्रॉफिट है. Hiromi elected to tax all of her transition profits in the tax year 23-24. Hiromi's only source of income in recent years was the house she was rented out until she sold it on 28th of February 2025. Hiromi's assessable property income for the final two tax years in which she owned the property was ये देखो. अभी देखो मेरे को जो है ना, मैंने कैपिटल गेन्स का मेरे को सीजीटी निकालना है. सीजीटी के लिए मेरे को बैंड का इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट. और मेरे को बैंड का इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? मेरे को बैंड का इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा कि कितना यूज करना है कितना नहीं करना है, वो मिलेगा टैक्सेबल इनकम से. बराबर है. अभी देख लो मेरे को प्रॉपर्टी इनकम जो था, कितना है मेरा मेरा प्रॉपर्टी इनकम कितना था? मेरा प्रॉपर्टी इनकम 15,500 का था. अच्छा, अभी देखो मैं पता है क्या बोल रहा हूँ. सुनो, ठीक है, जस्ट सुनो. ये मेरे ट्रांजिशन प्रॉफिट्स है, ठीक है. मेरे को 24-25 के मेरे क्या है, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट्स चाहिए, राइट. ये मेरे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं, ठीक है ना. टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर द टैक्स ईयर फॉर द टैक्स ईयर 24-25. वो मैं कैसे निकालूंगा? फर्स्ट जुलाई 23 से 30th ऑफ मतलब फर्स्ट जुलाई 23 से 30th ऑफ जून 24, बराबर है. पीरियड प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स कितने हैं मेरे? 44,000. अभी टैक्स ईयर, यार कितना टाइम लग रहा है इसको. 6th of April 24 से 5th of April 25 का है, बराबर है. तो मेरे जो पीरियड हो रहा है कवर, इसमें खाली 3 ही महीनों का हो रहा है, बराबर. अप्रैल मई जून. सो पीरियड 3, ठीक है ना. July 24 से ठीक है ना, पता तो चल गया. 1st of July 24 से 30th of June 25, तो ये पीरियड है, बराबर है. और इसमें मेरे को लॉस हुआ है -4,000 का, जिसका पीरियड आएगा 9 मंथ्स का, ठीक है ना. तब जाके मेरे को बैठेगा 12 मंथ्स का पीरियड. तो अभी इसका
अभी मैं करूंगा ब्रैकेट ओपन, इसको 9/12 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 44,000 का 3/12, तो आएगा 8,000 मेरे को आता है, ठीक है ना। सो मेरा 8,000 का जो है वो है मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, 8,000, ठीक है ना। तो चलो ये हो गया टोटल सम, ठीक है ना। लेस अभी मैं क्या करूंगा पता है, पीए करूंगा 12,570, 10 in the basic band the space of 0930 will be used and the capital gains will be charged on the amount at 10% एंड 20%, क्योंकि देखो अभी ये क्या बेच रहा है, ये जो बेच रही है ये रेंटल प्रॉपर्टी को ही बेच रही है, बराबर है। ये ना ही इसने बिजनेस में यूज की है, ये बस ऐसी एक रैंडम है शिट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अभी टैक्सेबल गेन्स मेरे ये हो गए थे, तो अभी देखो 37,700 के बैंड में से माइनस में करूंगा इतना अमाउंट जो बैंड में यूज हो जाएगा, ठीक है ना। और जो बचा हुआ है वो एडिशनल हायर में जाएगा, बेसिक बैंड जो जाएगा 10% में, ये जाएगा 20% में, ठीक है ना। तो मेरा सीजीटी जो आएगा ना, ये मेरा सीजीटी आना चाहिए, कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी, कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी। मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम पास कर लिया, ये नीचे ना मेरे को काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना चाहिए, मैं भी बहुत ज्यादा ऐसे फॉर्मेशन करने गया कि भाई इसका 3 महीने इसका 9 महीने, इतना नहीं करना चाहिए था मेरे को, काफी टाइम पास किया मैंने। ठीक है, ठीक है। अभी चलो, अभी मुझे लगता है ये अच्छा चेक करना है क्या, ये वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, आ जाओ। सीजीटी आता है इनको, अरे प्रॉपर्टी, ओ प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी था तो 18% एंड 24% पे होगा, राइट राइट राइट, माय बैड, शिट यार। तो 8114 ही आता है, जिस प्रॉपर्टी है तो वो 18 और 24% पे जाता है, वो चीज मैं भूल गया था, सॉरी। हाँ, पूरा बराबर करने के बाद जो हगने में बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है भाई। हाँ, in respect of the proposed sale of Hiromi's business assets to HKR Limited on क्या है ये, on 31 December 25, तो 25-26 में मैं आता हूँ। Explain whether or not each of the three conditions for the incorporation will be satisfied. Explanation देना है बस, on the assumption that incorporation relief will be available and that all available relief will be claimed where necessary. Calculate CGT. अरे यार, अरे यार, sale of the assets form of my business in HKR Limited. I will sell of the assets of my business to HKR Limited for the market values on 31st of December 2025. Details are given below. तो बराबर दिया डिटेल्स, बिल्डिंग भी दिया है, करंट एसेट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं आता, वेरी गुड, नाइस, काफी सही। I will receive 50,000 ordinary shares in HKR Limited. The whole of the company's issued share capital. The value of these shares will be 2,55,000, representing 81% of the total consideration. The remainder of the consideration will be left on loan account and will be made part of, nice. So looking forward to the future. Okay, I will not make any further disposals in the tax year 25-26. Nice. तो सी सबसे पहली बात तो फॉर इनकॉर्पोरेशन रिलीफ टू टेक प्लेस और टू अकर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ न्यू बिजनेस शुड बी स्टार्टेड, राइट, ऐसा कुछ तो रहता है। फिर रहता है पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड शुड बी इन शेयर्स, ठीक है, वो एक है। The sale should be of business assets, बराबर है, सेल शुड बी ऑफ बिजनेस एसेट्स, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन शुड बी, क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। एक और रहता था, करंटली आई एम नॉट एबल टू गेस दैट, बट ठीक है। अभी देखो टोटल चार्जेबल जेबल गेन्स, तो अपन थियोरी में ना वो सब लिखेंगे कि द इन द करंट सिनेरियो वी कैन सी दैट गुडविल दैट वाज परचेज्ड, मतलब ऐसे सब लिखते, मैं लिख ही देता हूँ, छोड़ो ना।
In the current scenario, we can see that the goodwill was sold at the same price as its cost, and so no actual gains will be received. ठीक है ना? The current assets are exempt from the CGT calculation. Thus, the only asset remaining is the building. अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट दैट इज बिकॉज कि यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें ना यार। जहाँ पे मैं मुझे लगता है मैं कॉपी पेस्ट कर पाऊंगा तो वहाँ पे बहुत सारा टाइम सेव भी हो सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो एईए जो है, मुझे लगता है मैंने जब पिछले साल में जो मैंने यूज़ किया था, यहाँ पे देखो ये वाला एईए, ये मैंने यूज़ किया था 24-25 में, लेकिन ये डिस्पोजल 25-26 का है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी मुझे एक एईए मिलना चाहिए। तो लेस एईए 3000 का होगा। एक मिनट, हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ, मुझे 1,69,000। एक मिनट, मुझे इनकॉर्पोरेशन रिलीज से पहले करना था कि बाद में करना था ये? शिट, नो वेज भाई, इसमें कैसे पक्का सकता हूँ मैं? ठीक है, जाने दो। assumptions because of which the incorporation relief is available are: first one, part of the consideration should be in terms of shares। ठीक है। सेकंड वाला, बिजनेस एसेट्स डिस्पोजल should be taking place। और एक एक और कंडीशन है, आई थिंक 5% से ज्यादा होल्ड करना चाहिए, 10% से, ऐसा कुछ तो है, मुझे फिलहाल वो याद नहीं आ रही है, बट चेक कर लेंगे बाद में। इनकॉर्पोरेशन रिलीफ, अभी देखो कितना है इनकॉर्पोरेशन, 81% इन टोटल कंसिडरेशन। टैक्सेबल गेन, अब मुझे थोड़ा वही याद नहीं है कि मैंने एईए पहले माइनस करना था कि बाद में माइनस करना था। बस थोड़ा वो अगर याद आ जाता ना अगर, तो शायद थोड़ा सही रहता है यार। ठीक है, देखो बिल्डिंग के बारे में देखते कुछ दिया हुआ है क्या। विल सेल माय बिजनेस एसेट्स टू एचकेआर फॉर द, आई थिंक इनकॉर्पोरेशन, हाँ आई थिंक गोइंग कंसर्न। हाँ, ट्रांसफर शुड बी ऑफ अ गोइंग कंसर्न, ऐसा था। ट्रांसफर शुड बी ऑफ अ गोइंग कंसर्न, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही था। ठीक है। मुझे पता है कैसे याद आया, क्योंकि देखो मुझे है ना गोइंग कंसर्न की तरह बेचना है। तो ये मेरा बिल्डिंग एसेट जो है ना, मैंने कितने ज्यादा ओन किया है, मुझे वो देखना था मुझे एक्चुअली। तो ये देखो, सेल ऑफ ए बिल्डिंग एसेट्स on 31st December 25, details of the assets sold below are given below। remainder of the consideration loan account to be paid, capital disposal में नहीं करने वाला हूँ। पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ये देखो, Hiromi has been in business as sole trader since 2016। On 31st of December 2025, Hiromi will incorporate her business by selling all the assets to a newly formed company, HKR Limited। The details of this transaction are set out in the schedule below। ठीक है ना? मुझे इनकॉर्पोरेट भी करना चाहिए एक बिजनेस, वो भी एक है। बट मुझे लगता है कि मुझे बिल्डिंग के ऊपर बैडर मिलेगा। ठीक है ना? मुझे लगता है सीजीटी जो होना चाहिए, इफ मुझे बैडर अवेलेबल है। अगर मुझे बैडर अवेलेबल है तो 6, तो 3211 का। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली तो जो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये वो बेसिक बैंड में तो आ ही रहा है। तो लेट्स चेक द अमाउंट अभी। ठीक है, इनका बिजनेस है, इसका देखो। द बिजनेस, हिरोमीज बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, परफेक्ट। ऑल एसेट्स ऑफ हिरोमीज बिजनेस अदर देन कैश आर सोल्ड। ओके, ऑल एसेट, ठीक है ठीक है। तो बिजनेस एसेट्स डिस्पोजल शुड टेक प्लेस, मैंने लिखा है बिजनेस एसेट्स डिस्पोजल शुड टेक प्लेस, लेकिन मैंने लिखा है ऑल ऑफ द बिजनेस एसेट्स। ठीक है, ऑल ऑफ द
this assets disposal should take place. The consideration received by Hiromi for the sale of her business includes shares. नाइस, तो इंक्लूड शेयर्स तो है. इनकॉर्पोरेशन बाद में माइनस करना था यार. इनकॉर्पोरेशन मतलब एईए, सॉरी एईए बाद में माइनस करना था, पहले नहीं करना था. वो एक गलती हो गई हमसे कि हमने पहले ही माइनस कर दिया. ठीक है, बट नाउ वी नो कि इनकॉर्पोरेशन बाद में माइनस, सॉरी इनकॉर्पोरेशन पहले माइनस होता है, एईए बाद में माइनस होता है. लेस एईए 3000, तो वो एक गलती हो गई हमसे. दिस माइनस इसमें ना, हाँ दिस माइनस दिस, इसे ना क्या हो गया 81% माइनस 72,000 का माइनस क्यों नहीं किया फिर मैंने, माइनस नहीं हुआ क्या पे से ना. हाँ, पहले केस में क्या किया था मैंने, पहले केस में मैंने माइनस किया था रेट बराबर से. हाँ पहले केस में मतलब मैंने बराबर से माइनस किया था. इस केस में पहले माइनस करेंगे. ठीक है, तो चार्जेबल गेन्स आएगा, चार्जेबल गेन्स. ठीक है, इसमें से फिर बाद में ए माइनस होगा एंड विल गेट 29,680 एंड देन सीजीटी आता है 2968 का. काफी क्लोज भाई, मतलब ये भी सम गलत, और ऊपर का भी जो हमारा सीजीटी का दिया ना, काफी सिली मिस्टेक की वजह से गया. एक में हमने 18 और 24 नहीं देखा, दूसरे में हमने ये बाद में माइनस किया, तो बहुत बेसिक एरर. बीएडीआर तो अवेलेबल है, सो दैट्स गुड. नाइस, नाइस जॉब देयर. आगे ट्रेडिंग लॉस एग्जिबिट 1 एंड 2 ही फिर से देखना है, कोई बात नहीं. फॉर द पर्पस ऑफ दिस पार्ट सी, you should ignore terminal loss relief and national insurance contributions. ठीक है, calculate Hiromi's budgeted trading loss for the tax year 25-26, tax year 25 and state how the loss can be relieved. तो अभी ये देखो, हमने जिससे ऊपर सॉल्व किया हमें वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन हम अभी उतना टाइम नहीं लेंगे. सो फॉर कैलकुलेटिंग the budgeted tax year loss, tax year loss of 25-26, there will be two accounting periods that we would need to consider, for the calculation. ठीक है, अभी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वापस वापस बोलना. ठीक है, मुझे 25-26 का निकालना है. ठीक है, तो अगर मुझे 25-26 टैक्स ईयर का निकालना है, तो मुझे एक सेकेंड ना, तो मुझे अप्रैल 25 से अप्रैल 26 का चाहिए. अप्रैल 25 से जून 25 का उन्होंने मुझे दिया हुआ है. ठीक है ना, तो मैं ऐसे लेता हूं, 30th जून 25 एंड 31st दिसंबर 25. ठीक है ना, लॉस ऑफ 4,000, लॉस ऑफ 43,500 फॉर द पीरियड of sorry line छोड़ दो, for the period of the first loss of 4,000, we we will need to proportionate it. So 4,000 negative 4,000 3 by 12, which is April to June, will be 1,000. ठीक है ना, फिर आता है 31st ऑफ दिसंबर था, तो ये तो 6 महीने का ही है ना मुझे लगता है, 6 months एंडिंग. हाँ, तो मुझे लगता है ये तो बराबर ही होगा, -43,500, ये पूरा का ही पूरा ही आएगा. ठीक है ना, तो ये 25 में ही बंद कर रही है क्या अपना सब धंधा? मुझे वो समझा नहीं है, सॉरी. ये इतना सारा धंधा 25 में, हाँ ये देखो ऑन 31 दिसंबर 25 में शी इज क्लोजिंग एवरीथिंग. ओके, सो हर टोटल
trading loss for the tax year, अरे tax year 25-26 is this plus this. तो ये आता है, ठीक है ना? नाइस. सो आई थिंक वी हैव कैलकुलेटेड दिस प्रीटी वेल. अब आता है, ये तो हो गया, ठीक है. स्टेट एंड नहीं, एंड स्टेट हाउ द लॉस रिलीव. तो देखो, assuming that terminal loss relief, बट क्यों terminal loss relief इग्नोर करना है? Fuck. Yeah, she's closing down her business also. First of all, she is closing down her business, so terminal loss relief is the most obvious claim. However, as we have to ignore the terminal loss relief claim, नहीं यार, वो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ ना बार बार. तो ऐसा लिखता हूँ मैं, ignoring the fact that the terminal loss relief claim can be made, the other loss relief claims which are available for कौन है ये अपनी हिरोमी, are current year and carry back, और एक्चुअली नहीं, करंट ईयर कैरी बैक नहीं, टोटल इनकम ना, रिलीफ अगेंस्ट दी total income which can be claimed in the current year or in the previous year depending upon which one is more beneficial. ये एक हो सकता है, ठीक है, ये एक है, ये कुछ अच्छा मिला है मेरे को. We can carry forward the loss in our future trading, in our future trading business as well. However, the fact that comes into play is that our future trading should also be of the same nature, ठीक है. एंड देयर शुड नॉट बी एनी ह्यूज ब्रेक आल्सो, मतलब इन सडन ब्रेक आल्सो. क्या यह वो वैट में था क्या? ब्रेक का नहीं, ब्रेक का आई थिंक वैट में था, सॉरी. चेक करते हैं ये वाला पार्ट, पहला वाला. सेकंड क्या, यूज द लॉस कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द टैक्स सेविंग which would result in the following two alternatives: loss relieving as soon as possible assuming that no relief is claimed in respect of the tax year 25-26, relieving the loss. हाँ, तो ये देखो, relieving the loss in the future, तो कैरी फॉरवर्ड तो हमने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है ना. लेकिन लुकिंग इनटू द, हाँ, लुकिंग इनटू द फ्यूचर, ये है ना, लुकिंग इनटू द फ्यूचर, ये रहा. हम्म. फिर लॉस का अमाउंट बराबर है क्या? ये देखो 44,500, नाइस, वो बराबर है. तो सी का फर्स्ट पार्ट का मैंने कर दिया. यहाँ पे बोलेंगे, पहला बात तो हम यहाँ पे बोलेंगे द टोटल इनकम रिलीफ क्लेम कैन बी मेड such that the loss incurred in the current the loss incurred can be set off with the losses that are incurred in the current year और द प्रीवियस ईयर. ऐसा सीन है वो. और नहीं, मतलब ए यू आर वाला, एंड मतलब द प्रीवियस ईयर. एंड मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ कि जो करंट ईयर एंड कैरी बैक है ना, वो सिर्फ कॉर्पोरेशन टैक्स में है, ठीक है ना. मैं हमेशा उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैंने बताया. और दी लॉसेस कैन बी carried forward so that they can be set off with the future incomes as well. लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि फ्यूचर इनकम के सामने, मतलब हम किसी भी इनकम के सामने कर सकते हैं या सिर्फ ट्रेडिंग इनकम के सामने कर सकते हैं. तो वो हमें जो है ऊपर आई थिंक ज़्यादा क्लियरली, मतलब क्लियर कट समझेगा, ठीक है ना. अभी अभी हमें सेकेंड पार्ट पे जाना है, सी के सेकेंड पार्ट पे, जो बोलता है कि भाई एक्शन में सपोर्टिंग एक्शन टैक्स सेविंग्स, ठीक है ना. अभी टैक्स सेविंग्स इफ मेड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना. टैक्स सेविंग्स इफ मेड एज सून एज पॉसिबल. तो इस टाइम पे क्या होगा? अगर मुझे टैक्स सेविंग एज सून एज पॉसिबल करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे प्रीवियस टैक्स में जाना पड़ेगा. मुझे प्रीवियस टैक्स से निकालना पड़ेगा. प्रीवियस टैक्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. नो, अरे ऊपर में निकाला था ना, लेकिन 8,000 था. द प्रॉफिट इन दी
previous can be claimed. The previous tax year can be claimed. As a result of the loss that we have incurred. So 8,000 at the rate of 20%. Yeah, this is the amount of income tax that will be saved. ठीक है ना? No personal allowance will be lost because of the excess of property income. लेकिन however पता है सबसे बड़ा सीन क्या है? however ये तो हमने 8,000 चलो यहाँ से कम हो जाएंगे. बैंडविथ फॉर द कैपिटल गेन्स टैक्स. देखो क्या हो रहा था, 8,000 का हमारा ये वाला प्रॉपर्टी ट्रेडिंग इनकम था. प्रॉपर्टी इनकम 15,500 था, तो 23,500 आ रहा था. उसमें से हमने इतनी जगह बेसिकली खा ली थी, बराबर है, बैंड ने. अभी क्या हो जाएगा, बैंड में इतनी जगह और बढ़ जाएगी. तो बिकॉज बैंड में इतनी जगह और बढ़ जाएगी, ये 6% से रिड्यूस हो सकता है. सो however the basic band space will increase, because of which the capital gains tax on 24% will now be charged on uh, क्या करूं, ऐसे लिखूं क्या? अच्छा तो लग रहा है वैसे, बट मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, मैं टोटल इनकम के सामने कर रहा हूँ ना यार. अरे मैं टोटल इनकम के सामने अगर कर रहा हूँ तो मैं पूरा ही कर लेता हूँ ना. मैं फिर मैं प्रॉपर्टी इनकम के सामने भी कर लेता हूँ. मैं सिर्फ ट्रेडिंग इनकम के सामने क्यों पकड़ के चल रहा हूँ, है ना? वाई मैं ओनली कंसिडरिंग कि मैं ट्रेडिंग इनकम के सामने करूंगा. ठीक है ना? पर्सनल अलाउंस विल बी लॉस्ट देन, क्योंकि क्या हो रहा है, मैं प्रॉपर्टी इनकम के सामने भी निकालूंगा मेरे लॉस को, है ना? तो कितना हो जाएगा, 15,500, 20% माइनस 12,570, 20% लॉस मेमोरेंडम क्या है मेरा टोटल लॉस? कितना है मेरा टोटल लॉस? 44,500 का है, बराबर है. लिंक दे देता हूँ भाई, 44,500 का है. रिलीव में कितना कर रहा हूँ अभी? टोटल इनकम कैरी बैक अभी बचता है मेरा टैक्स सेव जो हुआ है ना, वो हुआ है 21,2,186 का. ठीक है. ठीक है. अगर मैं एज सुन एज पॉसिबल करने का ट्राई, मुझे ये मिलना चाहिए. कैन आई रिलीव अगेंस्ट कैपिटल लॉस? कैन आई रिलीव, सॉरी, कैपिटल गेन. कैन आई रिलीव अगेंस्ट कैपिटल गेन? क्योंकि देखो मुझे कैपिटल गेन भी उसी साल में इतने का हुआ था, 40,500. मुझे वो पता नहीं है यार कि कैपिटल गेन्स के सामने मुझे लग तो नहीं रहा है कि हम कैपिटल गेन्स के सामने कर सकते हैं. बट अगेन इट्स टोटल इनकम ना, दे हैव सेड. दे हैव नॉट सेड ट्रेडिंग इनकम और प्रॉपर्टी, दे हैव सेड टोटल इनकम. हम्म.
करे क्या करे, बड़ी दुविधा है। मैं बोलता हूँ करके करके देखते हैं। लेट्स ट्राई अगर नहीं तो नहीं भाई, गलत तो गलत, उसमें क्या अभी, ऐसा कौन सा वेंचर पहली बार ही गलत जाने वाले हम लोग, पहली बार तो गलत नहीं जाने वाले हैं, तो चलो ट्राई करके ही देख लेते हैं ना भाई। 24%, 18%, तो मेरा 5481 का टैक्स सेव होता है अगर मैं सिर्फ पिछले साल में कैरी बैक करता हूँ तो, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अभी है फ्यूचर की बारी, ठीक है ना। अगर मैं फ्यूचर में कुछ करता हूँ, टैक्स सेविंग्स इफ कैरी फॉरवर्ड टेक्स प्लेस। Expect the turnover to take place at the 26-27 as a result, HKR will pay me a salary beginning of 6th of April 2026। तो वो लोग मेरे को beginning of the year मतलब next year 26-27 में ये लोग इसको क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। सैलरी कितने की दे रहे हैं ये लोग इसको, दे आर पेइंग हिम ऑलरेडी सैलरी ऑफ 5500 into 12, नाइस। डिविडेंड मुझे मुझे मिल रहा है विच इज नाइस, डिविडेंड which is of 7,000। The first dividend will be paid on 1st of November 2027। HKR ठीक है, that's fine। Sure, the first dividend will be paid on first HKR Limited will pay corporation tax at the main rate। Finally, I require advice on record keeping requirement। वो ठीक है, record keeping is fine। तो मेरी टोटल इनकम कितने की होती है, -20 माइनस 44,500, ठीक है ना। एक सेकेंड ना, नेक्स्ट ईयर ही है ये दोनों के दोनों, ठीक है ना। लेकिन इफ लॉस क्लेम्ड, इफ लॉस क्लेम्ड, इफ लॉस नॉट क्लेम्ड, ठीक है ना। तो पहला वाला इफ लॉस नॉट क्लेम्ड, दूसरा है इफ लॉस इज क्लेम्ड। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं लॉस वॉस कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो इतना आता है, ठीक है। लेस पी ए, जो पी ए आता है 12,570 का, तो ये भी माइनस करूंगा, इधर भी माइनस तो होगा ही वो, ठीक है ना। तो अभी टैक्स कितना आ रहा है, टैक्स मुझे आ रहा है 37700, ठीक है। अभी सबसे पहली बात तो 66,000 में से अगर मैं 12,570 निकाल दूं तो आता है मुझे, ठीक है। इसके ऊपर मुझे आता है 20%, ठीक है। फिर मुझे नेक्स्ट जो है 7700 से 125140 के बैंड में मुझे आता है दिस माइनस दिस, इस पे मुझे आता है, अच्छा ये अमाउंट है, हाँ सॉरी ये अमाउंट है, इसमें मुझे आता है 40%। देन 500 का नील रेट बैंड है डिविडेंड का, इसके ऊपर मेरे को आता है, इसके मुझे आता है 0%, डिविडेंड का वैल्यू माइनस 3.75 इज इक्वल टू 3.75% टोटल
So tax saved would be how much? ये हम निकाल सकते हैं टैक्स सेव, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली 15930 ही आ रहा है, लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है। मैंने ये 66,000 में से पहले मैंने सॉरी 66,000 में से, हाँ, पहले मैंने 44,500 माइनस किया होगा, तो आया 21,500। इसमें से फिर 12,570 माइनस हुआ होगा, तो वो आता है 8,930, जो मेरा आना चाहिए 20% के बैंड में, ठीक है ना। फिर आता है डिविडेंड निल रेट बैंड, ठीक है ना। तो डिविडेंड निल रेट बैंड तो वो तो 500 का ही रहेगा। एंड देन जो बचा हुआ 6,500 है वो आएगा 8.75% के स्लैब में। तो मेरा टैक्स रेट आया 13,671। ऊपर आता है फोर, ओके, और बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है। ऊपर आता है 5481। तो ऑब्वियसली मेरा टैक्स रेट एक्चुअली फ्यूचर में ज़्यादा, मतलब मैं अगर लेके जाऊंगा तो ज़्यादा सेव हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कैसे किया ये लोग ने। Reliefs available. Trading loss can be offset against the total income in the tax year 25-26 and or 24-25. The chargeable gains of either or both of the same 2 years, provided a claim has been made against total income years concerned. The first available income, salary and dividend received from HKR Limited. ठीक है ना। ये देखो, offsetting trading losses against Hiromi's income. Tax or tax at 24-25 would use 20,500 of the loss. This would result in the income tax of 2186. अरे यार वो 2186 ही था। The remainder of the loss 21,000 could then be offset against chargeable gain. ये देखो chargeable gains है, let's go। तो chargeable gains of the rental property के सामने हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, नाइस। तो हमारा जो जो टोटल टैक्स, मतलब वो टैक्स सेव्ड आना चाहिए, वो आना चाहिए 6790। ओके, हाउ द हेल डिड दैट वर्क आउट? वेट अ सेकेंड। मैंने क्या किया, मैंने 24% ऊपर किया था इसके सामने। मुझे एक्चुअली ना यहाँ पे ऐसे ही करना चाहिए कि व्हाट इफ आई कैलकुलेट दिस लॉस अगेन। मैं को है ना इसको ही कॉपी पेस्ट करना चाहिए नीचे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 3000, ठीक है ना। चार्जेबल गेन्स, control X here, less loss relieved 21,000, 21,000, तो 19,500 जिस 3510 की मुझे अभी टैक्स लायबिलिटी आती है। सीजीटी टैक्स सेव्ड, सीजीटी टैक्स सेव्ड मेरा कितना हुआ? मेरा सीजीटी टैक्स सेव्ड हुआ 3510 माइनस, तो मेरा टैक्स है 8114, तो इतना पता है 4603। तो बेसिकली मेरा 4603 का टैक्स सेव्ड हुआ। बराबर है, 4603 का मेरा टैक्स सेव्ड हुआ। ओ मेरा आंसर पूरा करेक्ट था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखो मेरा आंसर पूरा करेक्ट था, मैंने समेशन ही गलत डाला है। व्हाट द फक भाई। ओ माय गॉड, 96। समेशन में मैंने एक समेशन मैंने गलत डाला है, 9, तो आता है 6790, 6790। भाई कोई मेरे को मार डालो भाई, प्लीज, प्लीज बंद करो भाई ये। वो तो भाई नीचे चलते हैं भाई। इनकम टैक्स लायबिलिटी आफ्टर इनकम टैक्स लायबिलिटी बिफोर लॉस, ये देखो हमने किया हुआ है कैलकुलेट। डिविडेंड के सामने नहीं होता है, इज व्हाट दे हैव सेड। तो अगर मेरा डिविडेंड को कंसिडर नहीं करके चलोगे तो कितना आएगा, बेसिकली दैट्स व्हाट दे सेड हियर। तो ये आता है लॉस का सिनेरियो पूरा करने के बाद टैक्स सेव 12046। ओके, सो डिविडेंड जो मेरे को मिला वो मिला 2027 में।
ठीक है, जबकि मेरे को करना है 26-27 का। जब मेरे को डिविडेंड 2026-27 का करना है, राइट, दैट इज माय मिस्टेक। फाइन, फाइन, फाइन। एनी चैट्स तब तक कुछ आए नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सैलरी लिख दी 66,000, 66,000। अभी इफ वी जस्ट चेक हियर, एक सेकेंड। तो मेरी सैलरी है 66,000, 66,000। ठीक है। मुझे जो डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मेरे को मिल रहा है, तो फर्स्ट डिविडेंड विल बी पेड ऑन 1 November 27। मेरे को 27 में डिविडेंड मिल रहा है, जबकि मैं टैक्स ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ 26-27 के लिए, है ना। तो 27 बेसिकली अप्रैल में आएगा, तो मैं नवंबर 27 का डेट नहीं ले सकता। मेरा टोटल इनकम आता है इतना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे करूँगा, तो मैं करूँगा लेस लॉस रिलीव्ड, जो मैं सिर्फ एक के ही सामने करूँगा, जो है ये वाला लॉस रिलीव्ड माइनस 44,500। ठीक है ना। अभी टोटल टैक्स, अभी टैक्स कैलकुलेट होगा 0 to 37,700। 37,700 से 125,140, अरे सॉरी, ओ भाई, लेस PA 12,570, taxable gains 37,700. This will be taxed. This will be taxed at 20%. This will be taxed at 40%. So बचता है खाली ये वाला, this will be taxed at 20%. तो अभी summation, and this is the tax saved, which is 12,046। तो इधर आता है मुझे टैक्स ऑफ 6,790। यहाँ पे मुझे आता है टैक्स ऑफ 12,046। तो 12,046, ठीक है ना। डन, नाइस। आगे, set out the matters we should draw to Hiromi's attention in order to help her to decide how to relieve the loss. गेन सम प्रॉफिट्स, और क्या है बहनचोद, ये क्या है, लॉस को कैसे रिलीव करूंगा मैं, मैटर्स कौन से आने चाहिए, अरे भाई। लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली यार, वो तो है। व्हाट है। मैं जरा ये मैटर्स पढ़ लेते जरा, रुक जाओ। Carry forward of the offset loss against the income derived from HMRC would save additional tax, or additional मतलब वो tax of 5,256. However, the carry forward of loss would result in a benefit of the loss relief being delayed. ए हाँ, मैंने ये एक्चुअली पता है मुझे, अब ये सब चीज़ याद है, जैसे मैंने वो आंसर पढ़ना स्टार्ट किया मुझे याद आया। बेसिकली इसमें हमें वो सब लिखना है, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स वगैरह, कि डू वी करेंटली नीड कैश इन आवर हैंड सो एज टू मेक सर्टेन डिसीजंस वगैरह, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। However, the carrying forward of the loss would result in the benefit of the loss being delayed. Exactly. In addition, HK Limited may not
may not be as profitable as expected. This could have an effect on the salary to be paid to Hiromi, such that she would not be a higher rate taxpayer in the tax year 26-27. Fortunately, the election to offset the loss against the total income of the tax year 24-25 does not need to be made until 31st of January 2028, by which time we will know whether or not Hiromi is a higher rate taxpayer for the tax year 26-27. Okay, fine. When HKR Limited owns the business. Explain with supporting calculation the tax implications of HKR Limited and Hiromi of HKR Limited paying the dividend of 7,000 in tax year 27-28. State the matters you would draw to Hiromi's attention in relation to the requirements for HKR to maintain and retain the records relating to its business activities. See, ये जो है ना मतलब मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग रिकॉर्ड्स तो ये सब रहता है कि HMRC wants the records to be retained as much as possible, and if the records are not retained, then penalties are charged up to I think 3,000 or 5,000 for the records not being retained. Uh, as HMRC might do surprise checks and visits वगैरह वो सब का एक है. On the assumption that ये भी इसका ऊपर कुछ है क्या नहीं और कुछ तो नहीं दिया उन्होंने. With supporting action, the implications for HMRC and Hirome of HKR paying dividend. देखो, when HKR Limited will be paying dividend of 7,000 in the tax year 27-28. In the tax year 27-28, Hirome, my even if she would have carried forward her loss and assuming that she would have settled off her loss of 26-27 of 26-27. ठीक है ना उसने अपना लॉस सेट ऑफ किया ऑलरेडी ऑलरेडी 26-27 में. सो नाउ दिस डिविडेंड विल कम इन द हायर रेट and thus a tax of 33.75% would need to be paid. But the first 500 would be a dividend in dividend nil rate band, and above 6,500 would be payable at 33.75%. ठीक है, good. So we know this much. इसके आगे explain supporting action the tax implication for HKR Limited and Hiromi. HKR Limited will not be getting any tax deductions for the dividend as dividend is always paid after the tax. ठीक है ना, ये अपन ने बोल दिया. ठीक है, अभी आगे देखते हैं. स्टेट द मैटर्स यू वुड ड्रॉ टू हिरोमीज अटेंशन रिलेटिंग टू. हाँ द हाँ जो ये मतलब वो है ना वो रिटेनिंग द रिकॉर्ड्स. द रिकॉर्ड्स रिटेंशन should be in terms of evidence, any supporting documentation, bank statements, proofs या evidence जो मैंने बोला वो, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस ये सब होने चाहिए. आई थिंक 3,000 तक की पेनल्टी होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती. आई थिंक 3,000 तक की होती है पेनल्टी फॉर नॉट रिटेनिंग द रिकॉर्ड्स. एंड कितने पीरियड तक करने चाहिए ना रिटेन रिकॉर्ड्स? 5 years, 7 years, आई डोंट रिमेम्बर क्योंकि इंडिया में आई थिंक 7 years है जीएसटी के लिए. वहां पे पता नहीं कितना है. बुक कीपिंग ये जरा पढ़ लेते हैं. HKR Limited must retain records required to make a complete and correct corporation tax return. This will include evidence of transactions such as receipts, expenses, sales, and purchases of the goods, supporting documents, for example, accounts, books, and contracts. The records must usually be retained until 6 years after the end of the relevant accounting. 6 years, ठीक है. 6 years after the end of the relevant fucking accounting period. ठीक है, इसको हम याद रखेंगे. HMRC may impose a penalty where insufficient records are maintained. The maximum penalty is 3,000 for each accounting period. Nice. डिविडेंड के लिए उन्होंने क्या बोला है देखो. परफेक्ट परफेक्ट बोला है. अपन ने कोई भी चीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा. और ये देखो 500 पे नील रेट बैंड, 33.75 6,500 पे. नाइस. इन्होंने खाली कैलकुलेट किया, वो अपन कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऊपर एक चीज बोलिए, ये क्या है? डिविडेंड्स विल नॉट बी अलाउेबल पेमेंट फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग. परफेक्ट है, ये कोई अलाउेबल पेमेंट नहीं है. हमने डिडक्शन बोला था. नाइस. Accordingly, in order to have 7,000 of the post-tax profits for
फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन HK लिमिटेड विल हैव टू पे कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 233। हाँ ठीक है, ये बहुत ही लॉन्ग शॉर्ट चीज है जो इन्होंने बोली हुई है, बट ठीक है। फिर उन्हें हायर रेट टैक्स पर बोला है 66,000 का है, एंड उन्होंने बोला है डिविडेंड्स आर नॉट लायबल फॉर NICs। ठीक है, नाइस। आई थिंक दिस आंसर हमने काफी बेटर अटेम्प्ट किया है rather than जो हमने प्रीवियस आंसर्स अटेम्प्ट किए हुए थे उससे, तो एटलीस्ट ठीक है ना। वेल डन, नाइस।